Okay, so let's start. Okay, sir. भव्या बेटा, एक बात पता चली है आज मुझे। भव्या, आर यू देयर? Yes, sir. तुम्हारे बारे में एक बहुत गलत बात मुझे सुनने में आई है आज। कि आज तुम्हारा बर्थडे और तुमने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया। मजाक कर रहा अरे हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है अभी तो। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। हैप्पी बर्थडे भव्या। थैंक यू सर। ओके, तुम कोई पार्टी नहीं हो रही है आज? नहीं सर, बस घर में होगी। ओके, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, जब स्कूल खुलेगा तो तुम पार्टी दे देना हमको, ठीक है? नेक्स्ट ईयर। Why next year? This is the year going on. मतलब नेक्स्ट ईयर से मेरा मतलब नेक्स्ट सेशन। चलिए, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक कर लिया हमने? आई थिंक वी हैव डन टिल क्वेश्चन 8। Sir, 9. Sir, we have to do 9. वी ऑल डन क्वेश्चन 8? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। 20A क्वेश्चन 8 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 9 करना है। ओके, फाइन। Question 9. Find the length of the largest pole that can be placed in a hall 10-meter long, 10-meter wide, and 5-meter high. That means longest rod मैंने आपको बताया था. What is the meaning of the longest rod? Diagonal. Formula note कराया आपने? Diagonal. Yes. So diagonal is the longest rod. Yeah, diagonal is the longest rod that can be fit inside a room. And I have made you write down the formula of a diagonal. बस वही आपको find करना है यहाँ पे. Diagonal is equal to, sorry, Sir, square root of length, square breadth, square height square. diagonal equals to square root of L square plus B square plus X square. This is the formula. So under root, what is length? The length is given 10. Breadth is also 10. Height is 5. So under root 100 plus 100 plus 25. This is under root 225. What is this? 15 plus meters. 125? 15 meters. Answer 15 meters. Got it? I want to ask, Yes. sir, if we put 2 before this square root, sir, 2 then Sorry, if we put 2, sir, for, like sir 2, then sir this square root symbol, then L square plus B square plus H square. What does this means? मैं समझा नहीं, कहाँ पर, कौन सा?
सही जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उससे पहले अगर 2 लगा दें तो अच्छा, you mean to say this? ऐसे सर अगर व्हाट डज दिस मींस? ये जो 2 लगा दे, this यस सर व्हाट डज दिस मीन? this is also square root, that is also square root दोनों ही square root के सिंबल हैं. Suppose if I write square root of 64, so it is 8 only. इसको square root ही बुलाते हैं इसको. एक होता है क्यूब रूट. यस सर. क्यूब रूट में आप यहाँ पर 3 लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब रूट. ओके, क्या बुलाते हैं इसको? क्यूब रूट. वेयर यू राइट 3 है इन द पॉकेट. इसको ये पॉकेट है, इस पॉकेट में ये जो मतलब स्क्वायर रूट की अंडर रूट की पॉकेट होती है, दिस पॉकेट में अगर आप कुछ ना लिखें या फिर 2 लिख दें तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है. अगर आपने 3 लिख दिया दैट मींस इट इज क्यूब रूट. तो क्यूब रूट में 3 लिखना कंपलसरी है. एंड सर 4 स्क्वायर रूट अगर लगा रहे हैं एंड सर 4 स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आप 2 लिखें या ना लिखें. क्यूब रूट निकालना है तो आप 3 लिखेंगे. ऐसे ही फोर्थ रूट भी होता है. फोर्थ रूट निकालना है तो आपको 4 लिखना है. दिस इज नोन एज फोर्थ रूट ऑफ अ नंबर. ओके. ओके सर. So this you will have a chapter in class 8. The name of the chapter is cubes and cube roots, squares and square roots, cubes and cube roots. दो chapters हैं class 8 में. You will see them. Okay, now let's move on to the next question. I hope you all have done this. Question 10. Find the area of the square Yes, sir. whose sides measure यार. Question 10 अपने आप करना होगा. Find the area of the square whose length of whose diagonal is 72 centimeter. आइए ये question number 11. Good afternoon, sir. Good afternoon, चैतन्य. लेट आयो बेटा. सर नेटवर्क इशू की वजह से. अरे बहुत नेटवर्क इशू होता है. नेटवर्क इशू में लेट कैसे हो जाते हैं ये बताओ. मेरा जूम नहीं खुल रहा था. जूम नहीं खुल रहा. यस सर. Question 11. First part, the length of the diagonal of a square is given. Square की diagonal आप जानते हैं क्या होती है? What is this diagonal of a square? So this is known as the diagonal of a square. ये आपको given is 72 centimeters. Okay. The side of the square is not given. Okay. So what you can do? You can assume that the side is x. साइड को x मान लीजिए. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर. अगर हमें डायगोनल दी हुई है तो भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं फाइंड करने के. बट बिकॉज अभी हमने कोई ऐसा डायरेक्ट वाला तरीका सीखा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं सीखा, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ द डायगोनल. उसका एक डायरेक्ट मेथड भी है बट वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, सो वी आर नॉट यूजिंग इट. What we will do here, we will find the length of the side using Pythagoras theorem in this case. उसके बाद हम area find करेंगे. Okay. So area find करने से पहले x square using Pythagoras theorem. X square plus x square equals to 72 square. ये समझ में आया आपको? क्या लगाया मैंने? What is this? सर x plus x square is equal Sir, Pythagoras theorem. Yes, sir, Pythagoras theorem. Yes, using Pythagoras theorem, we can say that x square plus x square is equal to 72 square. So 2x square is equals to 72 square. 72 square कितना होगा? फाइंड करिए. सर 2x square is equal to What is the square of 72? 49, 4, 7, 14, 28, 4, 8, 5, 1, 8, 4. X square is equals to 5, 1, 8, 4 divided by 2. So x square is equal to
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया ये डिवाइड करके? व्हाट इज इट? 2592. 2 Sir, 2592. Yes, sir. 25. 2 अगर Yes, मैं sir, बोल दूं 259. अगर मैं बोल दूं यही एरिया है तो इसमें कुछ गलत हो जाएगा, बताइए। मैं बोल दूं यही एरिया है 2592, आप मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे? Yes, sir, because you have put it centimeter square. नहीं, यही एरिया यही होगा, 2592 होगा। व्हाई डू यू नो व्हाई? साइड तो मैंने फाइंड ही नहीं करी, डायरेक्ट एरिया मिल गया। कैसे? एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है? होता है नहीं होता है? एक्स स्क्वायर एरिया Yes, कितना sir. होगा स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर के इक्वल तो होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमें मिल गई, हमको तो साइड निकालनी ही नहीं पड़ी। Am I right or not? All of you understood? Oh, sir, I think this is side. साइड थोड़ी निकली है, ये तो साइड का स्क्वायर निकला। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है ये 2592, ये एक्स स्क्वायर मिला है आपको, एक्स नहीं मिला है अभी। एक्स आपने फाइंड करा है? अभी नहीं फाइंड करा। आपको ये क्या मिला है? एक्स स्क्वायर मिला है। और एक्स स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज एक्स स्क्वायर? इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। एम आई राइट और नॉट? X multiplied by X. Yes, यानी कि sir. एक्स Or स्क्वायर, side multiplied by side. एक्स स्क्वायर तो मुझे मिल गया, एरिया एरिया मिल तो गया 2592, तो साइड निकालनी ही कम पड़ी। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. X square को area कहते हैं मतलब. Sir, means we will not find out the मतलब sides हमें of square. नो वी डोंट नीड इट, हमें एरिया निकालना था, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी साइड निकालने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मिल गया एक्स स्क्वायर। दिस इज द एरिया 2592। इफ यू वांट यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम द बुक। Sir, done. So second part you can do in homework. Next is the area of a square is this, find the length of its diagonal। diagonal की लेंथ निकालनी है, एरिया हमको गिवन है। पहले आप एरिया की हेल्प से आप इसकी साइड निकालेंगे। The we can do this उल्टा. Yeah. So first Sir, इस स्टेप का उल्टा कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके, डोंट वरी। तो हमको एक स्क्वायर है, उसके बारे में क्या गिवन है, उसकी ना तो हमको साइड मालूम है ना डायगोनल की लेंथ मालूम है। ओके, एट व्हाट टाइम दिस पीरियड विल गेट ओवर, जल्दी बताओ मुझे। 40. Sir, 40. नहीं, No, sir. 30, 30, 30. 12:30। Sir, 30. Sir, 30. 30. Sir, 12:30. 12:30 पे होगा। यस, इट इज स्टार्टेड एट 11:50। The difference between square and rhombus is that, sir, in square there are right angles, sir, but in rhombus there are not right angles. यस, No right angle. Not any right rhombus angles. Okay. has all the sides equal, whereas a square has all sides equal and all angles right angles। ये स्क्वायर होता है। ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है स्क्वायर में, सारे एंगल्स 90 के हो जाते हैं। So here this is a square where this is sorry question number 12 हम कर रहे हैं। This is a square where Have to make this. हाँ, it's better if you make the figure। So we don't know the side of the square, ना तो हमको साइड मालूम है स्क्वायर की, ना ही हमको डायगोनल मालूम है। हमको अल्टीमेटली फाइंड करनी है डायगोनल, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दी है, y। हमको पता क्या है, यहाँ पर एरिया पता है। एरिया कितना है? What is the area? It is
It is. 16,200 meter square. 16,200 meters square. 16200 meter square. This is the meter square. हाँ जी, ये हमको दिया हुआ है एरिया. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? What is the area formula? Side into side, Sir, L into यानी कि side into side, L into B the area square है. Side into side, that means x square. X square कितना है? 16200 के इक्वल है. Am I right? X square इतना है. अब if you see that if you use Pythagoras and triangle ABC में अगर मैं Pythagoras लगाऊं तो क्या होगा? मुझे डायगोनल फाइंड करनी है. तो y square will be equal to x square plus x square, यही होगा using Pythagoras. यहाँ पे लिख दो Pythagoras theorem. ठीक है. Diagonal square is equal to hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square. दोनों इक्वल हैं. x square plus x square हो जाएगा. Pythagoras theorem हमने पढ़ी है पिछले चैप्टर में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ी थी. So y square is equal to x square plus x square कितना हो गया? 2x square हो गया. That means y square is equal to 2 into 16200. डायरेक्टली मैंने x square की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर. Are you getting my point? अब Yes, आप sir. फैक्टर्स Yes, sir. स्क्वायर रूट निकालना है हमको इसका. तो फैक्टर्स कर लीजिए इसके. कितने आएंगे? y is equal to square root of 2 into 1. why you are not multiplying? मैं जान के मुझे फैक्टर्स ही तो करने हैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई. तो 2 से करा एक बार, फिर क्या आएगा? 8100, यानी कि 3 into, अच्छा तो अभी और दो बार आ रहा है. May I tell the square root of 1600? 1620. 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 डायरेक्ट कर दिया मैंने. देखना जरा सही करें फैक्टर. ओरली कर दिए. Wait a second. सही करें. 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ठीक है. So this becomes 10 into 18. That means 180. 180 meters. So what to do if the number are in odd, like so there are 3 2, so how will we find the square root? जब होगा I will tell you. Suppose अगर किसी numbers का मतलब हमें square root निकालना है, suppose it is like this. मान लो मुझे square root निकालना है. 18 का square root मुझसे कह देते हैं find the square root of 18. तो जब मैं इसके factors करूंगा क्या आएंगे factors? 2 into 3 into 3. तो आपने देखा यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 2 का नहीं बना है. ये कहना चाह रहे हो ना? Yes, sir. 3 का पेयर बना, 2 का नहीं बना. So 3 जिसका पेयर बन गया वो जंप मार के बाहर कूद जाएगा, कूद गया बाहर. लेकिन 2 बेचारा जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर पड़ा रहेगा. आंसर क्या हो गया? 3√2. बट आपको इसकी Okay, वैल्यू sir. क्लास 8 में जब आप आएंगे तो यू विल लर्न हाउ टू फाइंड So, sir, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन डेसिमल नंबर. ये आप क्लास 8 में सीखेंगे. अभी आपको नहीं पता है तो यू राइट योर आंसर लाइक दिस. अगर ऐसा कभी होता है तो this means a cube root of 2. क्यूब रूट ऑफ नहीं, स्क्वायर रूट है. क्यूब रूट अलग चीज होती है. क्यूब रूट होता है जब मैं पॉकेट में So you have put 3. अरे 3 मैंने पॉकेट में थोड़ी लिखा है बेटा. पॉकेट में लिखा है, बताओ 3. इसका No, मतलब है sir. 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसका मतलब ये है, नॉट क्यूब रूट ऑफ 3. Okay, sir. So I was asking this only the previous time, अच्छा, but I thought this can be put like in the pocket also and out also. नहीं 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 नहीं. पॉकेट में लिखना अलग चीज होती है और ऐसे अलग लिखना अलग डिफरेंट चीज होती है. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. I think in your book there is another formula of area of square given, which is
क्या दिया हुआ है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ऐसी कुछ फॉर्मूला दिया होगा शायद एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर का, Yes, sir. डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर का। Yes, sir, 1/2 into diagonal square. हाँ, so that formula is actually derived from the area of a rhombus, area of rhombus के फॉर्मूले से डिराइव किया हुआ है वो फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूला मैंने आपको कराया नहीं है, that is why I want you Sir, all I forgot how to. learn, So learn how this. to find the rhombus area? Rhombus का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि Yes, sir. 1/2 multiplied by diagonal 1 and multiplied by diagonal 2. मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराया था तब मैंने नोट करवाया था 1/2 Yes, sir. That you gave in exam. या 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रॉम्बस। ओके, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय d1 मल्टीप्लाइड बाय d2, उसी से ही निकाला गया है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला डायगोनल वाला जो फॉर्मूला है वो उसी से ही बनाया गया है। Pythagoras theorem is very useful. सॉरी, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी यूजुअल, यू कैन सी कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं पाइथागोरस थ्योरम की, यहाँ पर देखिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम Sir, there is converse Pythagoras theorem also. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की होती है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का मतलब ये होता है, अगर कोई भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल, इफ इट इज एनी ट्राइंगल, और उसमें ऐसा होता है कि दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, अगर कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, दैट मींस वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कन्वर्स हो गई, यानी कि उल्टा। Sir, the last period is yours. या जीरो पीरियड इज माइन, I will be taking it. In that zero period, we will have some group discussion on a good topic. So the last period is 0 period. Yes. Yesterday only 3 students attended the zero period. Then question number 13. Area of a square field is this, half hectare, find the length of its diagonal in meters. बेटा बस आप हेक्टेयर को, बेटा क्वेश्चन सेम है, you do this in homework. Otherwise, What is is absolutely same. बस हेक्टेयर में आपको एक चीज इसमें सीखनी है, 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर का मीनिंग होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ये होती है एरिया, होता है 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया, ठीक है। तो अगर हाफ हेक्टेयर लिखा है आपकी बुक में, कितना लिखा है हाफ Sir, हेक्टेयर, 5,000 meter square. 5,000 meter square. 5,000 meter square. 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया, दैट मींस 5,000। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आपको 5,000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एक तरीके से। आगे का काम आप लोग कर लेंगे बिल्कुल सेम ऐसी जो मैंने अभी कराया था। Sir, doing. Sir, please wait. Yes. ये आपको समझ में आ गया 1 हेक्टेयर, क्वेश्चन 13 के लिए। Yes, sir. Are you doing it? 13th? Sir, doing.
Sir, 100 meter. Yes, sir. 100 meter is the answer. Sir, we have to find the square root of 2 multiplied by 5000. Yes, so the diagonal is it's the same of the previous. Sir, the answer is 100. The answer is So 100 Sir, meter 100. square. No, it's not square. 100 meter. Sir, 100 meters. 100 Sir, meter. 100. Okay, fine. Question number 14. The area of a square plot is 6084 meters square. Find the length of the wire which can go around. अरे, आपको एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, बाउंड्री पर वायर लगाना है. That means Sir, then multiplied by 4. In a way, we can say that we have to do the fencing of the square. ये करना है. Fencing करते हैं तो क्या find करते हैं? Perimeter. Am I right or not? Yes, sir. तो डायरेक्ट एरिया से पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं हम. इज इट पॉसिबल टू फाइंड पेरीमीटर यूजिंग एरिया डायरेक्टली? डायरेक्ट मतलब Maybe no. एरिया से पेरीमीटर. नो, नॉट पॉसिबल. तो क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर. एरिया की सॉरी स्क्वायर की साइड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया. एरिया का फॉर्मूला यूज करो, साइड ऑफ स्क्वायर निकालो और फिर साइड निकालने के बाद फिर पेरीमीटर फाइंड करो. ये करना है आपको. स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन 14 आल्सो. Set the formula to get side. एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड. दैट मींस एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो साइड कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. साइड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. बिकॉज एरिया इज इक्वल टू साइड Okay. स्क्वायर. तो साइड कैसे मिलेगी? साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. पहले आप साइड निकालिए एंड देन यू फाइंड द पेरीमीटर. स्टार्ट डूइंग इट. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे सो रहे हैं. आज एनर्जी खत्म हो, मतलब सारी खत्म हो गई है सुबह टेस्ट देने So I में. prepared for the tomorrow's test. So I am Understand, attending sir. today's classes. वेरी गुड. देखो Fun. चेतन की एनर्जी देखें आप, कितनी सारी है चेतन के अंदर. आलिंद के अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है. No, sir, ऐसा नहीं. है बची है. Yes, sir. इनमें आ गया. So 1248 meter. 1248 मीटर. कितना? सॉरी. So 1248 meter. 48. एंड व्हाट वाज द साइड? So the side was 78 and perimeter was 312 meter square. 312 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर. पेरीमीटर इज ओनली मीटर, नॉट Sir, sorry, meter. Find the length of the wire which can go 4 times. Okay, 4 times wire को. Sir, please tell a factor of 169. Sorry, 13. So factor of 160. 13 into 13 is equal to 169. So Thank you, sir. I was saying that यहाँ पर जो फील्ड है, स्क्वायर प्लॉट जो, उसमें वायर को 4 बार हमको बाउंड्री पर लपेटना है. दैट मींस वी हैव टू गो 4 टाइम्स. तो क्या करेंगे? पेरीमीटर जब निकलेगा आपका उसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. पेरीमीटर इनटू 4 करना है. ओके. So first you find the perimeter and then you multiply the perimeter by 4. Ultimately you have to do this. Okay. So 312 meter is the perimeter. Yes. Now you multiply the perimeter by 4. So 312 is the perimeter. नहीं, now you multiply it by 4.
बिकॉज आपको 4 बार उसको वायर को प्लॉट में 4 बार लपेटना है आपको। देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। यू हैव टू गो 4 Sir, टाइम्स 1 to along the 4. mountain. हाँ 1 to 4 it. हाँ 1248 is the answer. Sir, will my you do one answer more is question? 148 meter. Yes, correct. 1248 meter is the answer. This much of length of wire is required. So what will you do in today's zero period? Group discussion. Yesterday we So have about what? we had a group discussion with the 3 students. Today let's see कितने होंगे, 3 होंगे Sir, या on 2 the same होंगे या topic. 15 होंगे. So what Sir, topic on the about? same topic. नहीं, we will have some different topic. So what was the topic yesterday? Yesterday's topic was advantages and disadvantages of online classes and suggestions taken from the students regarding online classes. So please do another question. Yes, question 14, all of you done? Yes, sir. Okay. 15th देखिए. There are so many questions in all the exercises and Mainly word problems. yeah, mainly there are word problems only. That is why they take so much of time. A wire is in the shape of a square side. Wire है जो कि square की shape में है, of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeters, find its breadth. Which figure encloses more area and by how much? Okay. So let me explain. कितना time बचा जरा बताना? Sir, 3 minutes. 3 minutes. So 1 minute. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. 1 minute is left. तो ये तो हो नहीं पाएगा 1 minute में. Yes, sir. Thank you, What- sir, for teaching us. अरे नहीं, अभी थोड़ी छोड़ रहा हूँ. So we will do this question maybe tomorrow because we have a period tomorrow. Thursday. Yes, sir. Yes, Sir, you sir. don't have only on Saturday. Only on Saturday we don't have a period. Okay, and Yes, Sir, sir. उसका exchange आज मिलता है. tomorrow is your last test. Is it your last test tomorrow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा है? Yes, sir. Sir, SST. Social studies. Okay, and how many of you are scoring full in mathematics test? Sir, I. Sir, 1 or 2 cut. Sir, I. Sir, I. Very good. I liked your confidence. चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे. बाकी अच्छी बात है जितने ज्यादा बच्चे स्कोर करें फुल. Okay, फिर we will continue the chapter in tomorrow's class. Okay, thank you all of you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you.